السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا نقوی۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ۔ عبداللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، مزمل صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب شٹل ٹرین کے گزرتے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا انتہائی افسوس کے ساتھ، اور اس دھماکے کے نتیجے میں 35 افراد شہید ہو چکے ہیں اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ عبداللہ صاحب، بھارت اس کے پیچھے ہے اور پراکسی وار کے ذریعے سے جس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے میں جبکہ پاکستان اس ٹائم لائم لائٹ پر ہے اور ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، مطلب کتنا ضروری ہو چکا ہے اب بھارت کو سمجھانا اور سختی سے پیغام دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ آپ کو اور مزمل صاحب کو، ناظرین کو السلام علیکم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، یہ صرف بڑی آسانی سے بھارت کے ہم پیٹے ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت تو انوالوڈ ہے ہی، لیکن دوسری جانب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اب گوادر پورٹ اپنے عروج کے اوپر جانے والا ہے اور ایک پاکستان جو ایک انرجی سٹی کا قیام ہے، اور وہ بھی پاکستان میری ٹائم انرجی سٹی، جو کہ ایک نیا پورٹ بنانے چلی ہے، ایک ایسا سلسلہ جہاں سعودی عرب اور کویت اپنے تقریباً 17 ملین بیرل آئل کو ادر دین سعودی عرب اینڈ کویت، وہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک ریزرو کے طور پر وہاں رکھیں گے، جس کو کبھی بھی کسی بندش یا جنگ کی صورت میں پاکستان استعمال کر پائے گا۔ اس سے بہت سارے اور کچھ ممالک ہیں جن کے پورٹس ان کو تکلیف ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب تک کہ گلف کے اندر جنگ چل رہی تھی تب تک بلوچستان میں سکون تھا، جیسے ہی گلف کے اندر جنگ کی ذرا کمزوری ہوئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر بلوچستان خاص طور پر اور ساتھ ہی ساتھ کے پی دوبارہ ٹارگیٹ کے اوپر ہے۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں اور سیکیورٹی فورسز کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن یہ جعفر ایکسپریس 2 نہیں، اس کو میں کہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ ایک جعفر ایکسپریس 2 کا نتیجہ ہے؟ اور وہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس ٹائم پہ بھی جو بھارت اگر انوالو تھا تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی جس طریقے سے اس کو سامنے لے جانا چاہیے اور جس طرح سے ایران کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہے، عالمی جنگ بندش کے حوالے سے کردار ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا پاکستان کا اب ہمیں کوئی اس کے اوپر لیوریج ملے گا؟ کیا بھارت کو کہیں اس کے اوپر سینکشنز عائد ہوں گی؟ کیا امریکہ ان کو یہ بھی بولنے کے لیے تیار ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اور تمہیں اس کا سزا بھگتنی پڑے گی یا اس کا جواب دینا چاہیے؟ لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج بھی یہ چمن بارڈر کے ساتھ ہے، افغانستان کے بارڈر کے ساتھ یہ واقعہ ہے، اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اورمچی کے بعد پاکستان نے افغانستان پر ایک نرم ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے عید پر چمن کا بارڈر کھولا بھی، ریلیکس بھی کیا ہے، اور یہ جو افغانستان کے حوالے سے ہماری ایک نرمی کی پالیسی پچھلے کچھ دنوں میں نظر آئی ہے، اس کے نتائج دہشت گردی میں اضافے سے نہیں نظر آ رہے؟ نہیں مزمل صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ نرمی کی پالیسی، آپ سختی پالیسی کر لیں، اچھا آپ کا بھارت کے ساتھ تو سختی کی پالیسی ہے نا بارڈر پہ، تو پھر وہ آپ کو نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ کیا وہاں ہم نہیں وہ تو دیکھ رہے افغانستان کو کہ یوز کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں کوئی ٹیررسٹ انڈیا کا بارڈر کراس کر کے تو نہیں آ رہا ہمارے ملک میں، وہ بارڈر تو سیل ہے۔ ہمارا ایلیگیشن ہے کہ افغانستان کا بارڈر یوز ہو رہا ہے پاکستان میں ٹیررسٹوں کے آنے کے لیے، تو ڈیل تو ہمیں پہلے افغانستان سے اور ان سے ٹی ٹی اے سے کرنا پڑے گا نا کہ ان کا بارڈر یوز ہو رہا ہے۔ ابھی کشمیر میں بھی تو ہوا ہے نا ایک واقعہ، بہرحال وہ تو ایک انڈیویجول واقعہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تو آ جاتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے اندر آپ کو تقریباً $5 بلین کا ان اناؤنسڈ ٹریڈ ہے، اور یہ تقریباً پاکستان کو بھی بینیفٹ کرتا ہے، افغانستان کو بھی کرتا ہے۔ اور کیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک بغیر افغانستان کو سیٹل کیے کیا یہ ممکن ہوگا؟ بالکل نہیں ممکن ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف افغانستان کا بارڈر نہیں لگتا بلوچستان کو، بلکہ اور بھی بارڈر لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ایران کا لگتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ عزیر بلوچ کو، آپ کو یاد ہوگا کہ عزیر بلوچ کے پاس اور بھی ممالک کی نیشنلٹی تھی، اور پھر اسی طریقے سے جب عزیر بلوچ کو مانگنے کے لیے کس کو جانا پڑ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں ابھی کیا ہسٹری کو دوبارہ ریپیٹ کروں، اگر اس وقت کے انٹیلیجنس کے سربراہ نہ جاتے تو عزیر بلوچ کو تو آپ کو وہ نہیں دینے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے اگر آپ ڈاکٹر اللہ نظر کی بات کر لیں یا بشیر زیب کی بات کر لیں، کہاں ہوتے ہیں وہ لوگ؟
everybody knows it. I think हमें उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया ने कहाँ-कहाँ दिफाई मुआहदात किए हैं. हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान अगर शीरो शक्कर है तो और भी ममालिक हैं, और इजराइल को हम क्यों माइनस कर देते हैं. इजराइल के बाकायदा फुटप्रिंट्स मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर. इन सब के बावजूद अगर वो अमेरिका के साथ उनको पता चलेगा कि वो 10 साल दिफाई मुआहदा उनको मिल रहा है, 18% उनको ट्रेड के ऊपर टैरिफ आ रहा है, पाकिस्तान पे 19% है, $7.2 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं, दहशतगर्दों को वहां वो बैठे हुए हैं, रोजाना तादाद में इंक्रीज हो रहे हैं. रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा गैर मुल्की हैं. और फिर इससे बढ़कर जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अमेरिका 2021 के बाद से लेके $18 बिलियन अफगान हुकूमत को दे चुका है अवाम की रक्षा के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए. अब आप मुझे ये बताइए कि अवाम की सहूलत का आलम तो ये है कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो वो आदमी ने अपनी बेटियां बेच दी हैं. आप अंदाजा करते हैं. जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में शुरू की तो पाकिस्तान में ये टेररिस्ट अटैक्स और सुइसाइड अटैक्स में कमी हुई और वो 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई. अब उरुमची के बाद हमने वो सिलसिला रोका हुआ है, जिसके बाद दोबारा हमें टेररिस्ट अटैक्स और सुइसाइड अटैक्स नज़र आते हैं. क्या लोग अब ये सवाल नहीं कर रहे कि ये जो तंजीमें हैं BLA और TTP, इनके ख़िलाफ़ दोबारा एक हाई हैंडेडनेस और सख्त स्ट्राइक्स करने का वक्त आ गया है? सर देखिए, बात यह है कि आपने तो हार्ड स्टेट का बोल दिया था ना. अगर आपने हार्ड स्टेट बनना है, और बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा आपको पता है वजीर आजम ने अभी FC को मूव करने के लिए भी जो है वो हुक्म दे दिया है और एक नया वहाँ सेटअप रेज कर रहे हैं. उसके बावजूद आप देखें कि तो अब इसमें 2-3 चीज़ें मुझे अलाउ में, मैं आपको 2 मिनट में इसमें देखिए. असल बात यह है कि बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वो आपको कहाँ नजर आई है इस सारे मामले के अंदर. जब जाफर एक्सप्रेस भी हुआ था, आपको वहां का सेनेटर, MNA, MPA कोई नजर आया? वजीर आला बलूचिस्तान को आप साइड पे कर दें. आप उसके अलावा मुझे बताएं कि कौन सी लीडरशिप है जो वहां जाती है, अवाम के अंदर बात करती है, तमाम का तमाम इल्जाम जो है वो कैंटोनमेंट में लगा देते हैं. मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये देखें दिल जल रहा है इस टाइम पे. अब जो दूसरी जानिब अगर आप ये कहें, अफगानिस्तान पे बिल्कुल स्ट्राइक्स जो हैं, जो हमारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है वो कामयाब होनी चाहिए. ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो चलते रहना चाहिए, उसके अंदर तातुल नहीं आना चाहिए. लेकिन सवाल एक और भी पैदा होता है, BLA, मजीद ब्रिगेड, BLF वगैरह, इनकी लीडरशिप कहाँ बैठी हुई है और जनीवा में कौन लोग बैठे हुए हैं? उनको अरेस्ट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? क्या इंटरपोल जो है उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? अमेरिका अगर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है तो उसके बाद से मुझे बताएं, उनके अकाउंट्स तक बंद किए गए हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनकी वेबसाइट्स तक तो बंद नहीं की गई. उनके ऊपर आज़ादी जो है वो मौजूद है. हर किस्म के जो BYC के लोग हैं उनको तो पूरी दुनिया के जो है वो वीजे मिलते हैं. उनको तो इवन नोबेल इनाम के लिए जो है वो नामजद करने की बातें आ रही थी सामने. ये भी तो चीजें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. हाउएवर, आई एम इन फुल एग्रीमेंट विद यू ऑन दिस कि आप जो है वो अपने जो ऑपरेशन थे, जो डीप स्ट्राइक्स थी, जो उनके टेररिस्ट हाइड आउट थे, जैसे मैंने गुजारिश की, 23,000 दहशतगर्द वहां मौजूद है. TTP बैठी हुई है. ये TTP है या TTA, ये एक आइडियोलॉजी के लोग हैं. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट. और दूसरी बात यह है कि ये तो अफगान कौम के लिए भी एक नासूर बने हुए हैं, जहां वो पैसे ही नहीं मिलते. लेकिन $160 मिलियन जिस हुकूमत को अमेरिका से हर महीने आ रहा हो, $40 मिलियन हर हफ्ता उनको आता है. सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये शिगार रिपोर्ट कह रही है, अमेरिकन सीनियर इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट है ये. अब इस सारे के अंदर आप मुझे बताएं कि जो उनका पैसा है वो तो उनका स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान को जा रहा है ना, तो स्टेट बैंक को ऑपरेट कौन कर रहा है? तो TTA कर रही है ना. तो बात खत्म है ना सर. चलें अब जरा चेंज करते हैं टॉपिक. अब ईरान अमेरिका पे आ जाते हैं. MOU का इंतज़ार है सबको कि कब अमेरिका अनाउंस करता है. उन्होंने कहा संडे आफ्टरनून तक करते हैं. आपको क्या लग रहा है अगले जो 60 दिन के मुज़ाकरात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? फाइनली खुशखबरी आने वाली है. देखें सना साहिबा और आप भी सोरवर्दी साहब,
अगर अमेरिका ने जंग करनी होती तो मुझे बताएं सर कि फिर तो पीट हेगसेट को बुलाना चाहिए था ना रात को, फिर उनको जो है वो ज्वाइंट चीफ को बुलाना चाहिए था, उनको अपने आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जेडी वेंस को बुलाया। जेडी वेंस को बुलाने का क्या मतलब है, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को बुलाने का क्या मकसद है? यानी कि सेम ओल्ड पार्टी जिसने 12 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बैठक सजाई थी। ये वो बात है जिसको अगर हम समझें तो हमें ये नजर आता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो इसके अंदर आप ये कहना कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ अनप्रेडिक्टेबल थे तब तक जब तक कि उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था। अब जो उनके ऊपर रिपब्लिकन्स का दबाव है, आई थिंक वो बहुत हार्ड हो चुका है। रिपब्लिकन को ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अगले इलेक्शन लड़ने कोई नहीं है, लेकिन जेडी वेंस ने तो लड़ना है, उनकी पार्टी ने लड़ना है, उनके लोग उनसे दूर हो रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, टिकट लेने से इनकार है, उनकी मईशत डूब रही है, उनके डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन का वो शिकार हो चुके हैं। अमेरिकन पॉलिसियों ने इवन इजराइल को तनहा करके रख दिया। आप मुझे बताएं, ये वही इजराइल था ना जिसके लिए बकायदा अब्राहम अकॉर्ड बनाया जा रहा था, गजा पीस बोर्ड बनाया गया। कहाँ है सर आज? आपके साथ तो मैंने कितने प्रोग्राम किए थे, आपको याद होगा। मैंने जो बातें, ये सना बैठी हुई है, इनको अच्छी तरीके से याद है, मैंने कहा था जिस बात के ऊपर मैं बैठा हुआ था पहले दिन, मैं आज भी उसी के ऊपर हूं। मैंने आपको कहा था कि इनको मुकद्दर में इनके हार लिखी हुई है और इनको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ईरान जो है उसकी भी डेवस्टेशन हुई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि उसकी डेवस्टेशन हुई है, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों के लिए मेरी एक सजेशन है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। उनको पता होना चाहिए है कि ईरान को भी पता होना चाहिए कि अभी मौका है। ये ना हो कि इजराइल जो है वो ये जानता है बड़ा अच्छा, नेतन्याहू खास तौर पे जानता है इस बात को कि उसको इलेक्शन के अंदर कामयाबी नहीं मिलनी, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो जेल जाएगा और सारी जिंदगी चक्की पीसेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस सारे के अंदर वो चाहता क्या है कि वह जंग चलती रहे या अनसर्टेनिटी रहे। अनसर्टेनिटी रहेगी तो अमेरिका रहेगा तो उसकी जो हुकूमत है वो इमरजेंसी के ऊपर सेटअप पे चलती रहेगी। जैसे वो कितने सालों से इलेक्शन अवॉइड करके चला रहा है, उसके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, उसका मैंडेट तमाम का तमाम फारिग हो चुका है। लेकिन आज इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लेबनान पे कोई पीस डील कबूल नहीं करेंगे और लेबनान पे हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, ईरान अमेरिका बेशक सुलह हो जाए। तो सर दो ही बातें हैं ना, फिर इसका मतलब है कि अमेरिका के पास दो ऑप्शन हैं। एक पहली ऑप्शन ये है कि वो हमला करे, एक अलामती हमला करे, उसमें कुछ बमबारी करे और कहे विक्ट्री डिक्लेयर कर दे और कहे कि जी मैं जा रहा हूं और मैं ये अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए। व्हाटएवर, दुनिया को तो वो झूठ बोलते हैं, वो पहले भी बोलते आए हैं, अब भी बोल लेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि ये जिस तरह से चल रहा है जनाब, आई एम गोइंग, और उसके बाद जो है देखा जाएगा जो भी है। केओटिक सिचुएशन में अफगानिस्तान को छोड़ा, वियतनाम को छोड़ा, हेटी, सोमालिया, इराक को छोड़ा, लिबिया को छोड़ा, ये सारे केओस के अंदर छोड़ा ना तो ठीक है। अगर यहाँ होती रहती है इजराइल को वो सपोर्ट करते रहेंगे, ईरान पे वो सैंक्शंस लगाए रखेंगे और खुद वो यहाँ इलाके से लेकिन वो तो लेबनान, ईरान का सीज फायर तो वो मान रहे हैं, लेबनान का सीज फायर नहीं मान रहे। सर लेबनान के बाद आप देखें ना, माशाल्लाह सरवर्दी साहब, आप तो यू आर सच अ ब्राइट मैन। मुझे ये बताइए कि अगर लेबनान में पीस नहीं होगा या खित्ते में कहीं भी पीस नहीं होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? इसका मतलब ये है कि वक्ती तौर पर ये वॉल्केनो जो है थोड़ी देर के लिए इसमें उबाल कम हो जाएगा, लेकिन लावा फटने से पहले लावा पकता रहेगा और लावा कभी भी फट जाएगा। फिर इसका मतलब है कि यमन की सिचुएशन भी यही रहेगी। इसका मतलब है कि अल फाशिर के अंदर भी वही काम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो अरब दुनिया को तकसीम भी कर चुके हैं। आपको पता ही है जीसीसी तो अब आज टूटा कल टूटा वाली बात है। अब इस सारे के अंदर अगर ये लबनान का वो मामला रहा तो फिर ईरान की भी प्रॉक्सियां चलती रहेंगी और फिर जो है वो ये कन्फ्रंटेशन जो है वो चलती रहेगी और फिर आगे न्यूक्लियर भी बनेगा, आगे सब कुछ होगा। फिर एक दफा फिर जो है वो लड़ाई होगी, ईरान को वो फिर एक दफा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेट्स सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने जहां भी गया है, जंग तो जीती कोई नहीं है, आपको पता ही है, केओस में ही छोड़ के गया है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो ये कि हमला करें और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर
डिक्लेयर कर दें और वो चलते बने, और दूसरा ये है कि वो केओस को रखें और कहें जी हम नहीं जानते, तुम जानो, हुर्मुज जाने, जिसको खुलवानी है वो खुलवा ले, जिसको नहीं खुलवानी ना खुलवाए, हम तो जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में इस टाइम पे जो इंटरनल प्रेशर्स हैं अमेरिका के ऊपर वो इतने ज्यादा डीप हो चुके हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात थी, आई थिंक कि मैं उस चीज को अब बाय नहीं करता। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आप लाइन पर ही रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। प्राइम मिनिस्टर चाइना हैं और कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी चाइना की ट्रिप पे उनको ज्वाइन करने लगे हैं प्रेसिडेंट शी से मुलाकात में। या आइए आप हमारा चाइना ट्रिप कैसे देख रहे हैं? सना साहबा आप भी बात कर लीजिए। जी अब्दुल्ला साहब, मैं ये कहना चाह रही थी कि इस जंग ने ईरान को, आपको नहीं लगता कि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है? कि हम मैन्युफैक्चरिंग में मिसाइल्स उठा के देख लें, हम ड्रोन्स उठा के देख लें, ईरान की मैन्युफैक्चरिंग हमारे सामने है। और यही नहीं बल्कि समुंदर भी 22,000 किलोमीटर जिस तरह से ईरान ने कब्जा कर लिया है, ईरान के लिए तो आपको नहीं लगता कि विन विन सिचुएशन पहले से ही है? और इसकी अगर एक और दूसरी साइड भी देखी जाए तो हो सकता है कि इससे मुज़ाकरा डायलॉग तो पहले भी हमने देखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में हुए हैं, लेकिन डायलॉग्स का नतीजा क्या निकला? आपको नहीं लगता कि खतरे की घंटी तो अभी भी कहीं ना कहीं पे बजती रहेगी? देखिए मुजम्मिल साहब, आपने जो सवाल पूछा था चाइना का, देखिए चाइना का विजिट तो एक अलहदा चीज है। कब हो रहा है? 75 साल जब हमारा एक उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक, एक जिसको सदर शी जिनपिंग ने अब समुंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी दोस्ती को एक नया नाम दिया है, आनी भाई, यानी कि आयरन ब्रदर्स। ये अब ब्रदरहुड जो है ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, और एक ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जिस टाइम पे सदर ट्रंप जो है वहां से होके आए हैं, सदर पुतिन जो है वो होके आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं। आपको नजर नहीं आ रहा कि एक बड़ी अलाइनमेंट जो है वो दुनिया में पेश आ रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा अहम तरीन किरदार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर फील्ड मार्शल के बगैर तो ये दौरा मेरे ख्याल में इसके अंदर वो चाशनी, वो लज्जत नहीं होगी, इसलिए उनका जाना वहाँ जरूरी है। और पे जो वहाँ चाइना की क़यादत है उनसे मिलना, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ, आपको पता है 14 अगस्त के ऊपर कुछ पाकिस्तान ने तोहफे भी देने हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं दुनिया के लिए, भारत के लिए। और आप ये भी देखें ना कि हम पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ मिलकर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनकी असला साज इंडस्ट्री को। उसके अंदर हमारे जहाज भी हैं, उसके अंदर हमारे मिसाइल्स भी हैं, उसके अंदर हमारी जो है वो सबमरीन्स भी हैं, उसके अंदर हमारे नेवल जो फैसिलिटीज हैं वो भी मौजूद हैं। अब ये तो बहुत ही अहमियत का एक दौरा है। अब इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मेरे ख्याल में चाइना आपसे पूछेगा कि आप ईस्टर्न वैल्यूज के ऊपर रख के चलेंगे या अभी भी वेस्टर्न नियम को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आपने इसको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो आई एम सॉरी सर, फिर आपको वेस्टर्न वैल्यूज को जरा आपको पीछे हटना पड़ेगा। जहां तक ताल्लुक है सना साहिबा का, लेकिन सना साहिबा बात यह है कि ईरान की विक्ट्री, आप इसको क्या विक्ट्री कहेंगे कि $270 बिलियन का नुकसान होना, 6,000 से ज्यादा शहादतें होना, लबनान की मिला के बात कर रहा हूं, और उसके अंदर अवाम को तकरीबन 22 लाख लोगों का बेरोजगार हो जाना, ऑयल इंडस्ट्री का बंद हो जाना, और इसके अलावा दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचना। आई थिंक कि एक विक्ट्री ईरान को जरूर है, और वो है मॉरल विक्ट्री, और वो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि ईरान एक ऐसी फोर्स है जो सामने खड़ी हो गई, और बावजूद शहादतें, उन्होंने फिर ईरान का कैरेक्टर देखा। कैरेक्टर ऐसा था कि सैयद अली खामेनाई शहीद रहमतुल्लाह जो थे, वो क्या बंदे थे वो। उन्होंने सबसे पहले खुद कुर्बानी दी, बाद में अवाम से मांगी। ये वाज अ ग्रेट मैन अनडाउटेडली, कि वो उनका एक बड़ा स्टैचर उठ के सामने आया है। एक तरफ कैरेक्टर है और एक तरफ नो कैरेक्टर है। इसलिए जो आपने कहा, उनको स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मिली है, उनको पॉलिटिकल विक्ट्री मिली है, उनको डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली है। लेकिन अगर उन्होंने इसको ज्यादा लिंगर ऑन किया, प्रोलॉन्ग किया,
तो फिर वो इस अपॉर्चुनिटी को क्राइसिस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो माय सजेशन वुड बी कि इस मामले को बेहतर यह है कि वो सुलझा लें। मजीद अगर समुद्र के ऊपर वो काम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। यूरोप बैठा हुआ है, लोग देख रहे हैं। आखिर अगर ऐसा हुर्मुज बंद रहेगी, मुश्किलात में इजाफा होगा, तो ये नहीं, हुर्मुज क्या, आपका क्या ख्याल है, सिर्फ ईरान और ओमान मिलकर चला लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। और भी ममालिक हैं दरमियान में बैठे हुए हैं और नई अलाइनमेंट हो रही है। हाँ, ये है कि जो गल्फ का नक्शा है, जो पॉलिटिकल नक्शा है और जो जियोग्राफिकल नक्शा, उसके अंदर मुझे तब्दीलियां नजर आ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। कोयटा शटल ट्रेन के करीब जो खौफनाक धमाका हुआ है उसकी तफसीलात जान लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा अयूब तरीन साहब हमारे साथ हैं। अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। अयूब साहब, क्या सूरत हाल है इस टाइम और शहदा की तादाद क्या बताई जा रही है? जी, इस वक्त जिस चमन पार्क के जिस एरिया में ये धमाका हुआ है वो कम्प्लीटली उसको घेरे में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके में भी तहकीकात का अमल जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये धमाके की असल वजूहात क्या है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं सुबह से अब तक जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने आदाद शुमार जारी किया उसमें कहा जा रहा है कि 14 जो है वो अफराद जो है वो शहीद जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जिसमें 3 FC एहलकार भी शामिल है। ताहम दूसरी आज़ाद ज़राए से जो मुख्तलिफ अस्पतालों से हमें इत्तला मिल रही वो अब बता रहे कि मरने वालों की तादाद 28 तक पहुँच चुकी है। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं जो कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि जो शदीद ज़ख्मी होंगे जिनका इलाज कोयटा में मुमकिन नहीं है उनको कराची बज़रे एयर हेलीकॉप्टर या जहाज़ के ज़रिए उनको मुंतकिल किया जाएगा। और ये भी ऐलान हुआ है कि जिनके अखराजात है वो हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी उनके इलाज मुआवजे की। इसके साथ साथ हुकूमत ने कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की थी। आज सुबह जो ताहाल बरकरार है और तमाम जो तबी अमला है वो अस्पतालों में मौजूद है। इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आए हैं कोयटा, वो क्या कर रहे हैं? जी, मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक हलासती इजलास की सदारत भी की है जिस पर उन्होंने कोयटा में जो आज का वाक़या हुआ है उस पर तशवीश का इज़हार किया गया। इस मौके पर सूबाई हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट, इब्तिदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट भी वफाकी वज़ीर को पेश की गई है। उसके बाद उन्होंने अस्पताल जाके मरीज़ों की इयादत भी की है और ये उन्होंने हिदायत भी दी है कि सिक्योरिटी प्लान को जो है वो रिविजिट किया जाए और खासकर पब्लिक प्लेसेस को भी हाई अलर्ट किया। धमाका हुआ है ये बलोच इलाका है या ज्यादा बलोच लोग रिहायशी हैं जिस इलाके में धमाका हुआ है? ये जिस इलाके में धमाका हुआ है ये चमन पाटक है और ये चमन पाटक और कोयला पाटक का दरमियानी इलाका हम कह सकते हैं, जहाँ पे अब मिक्स आबादी है, बलोच भी है, पश्तून भी है, जो सेटलर या पंजाबी या हज़ारा तो उर्दू स्पीकिंग के जो लोग हैं वो सारे इधर आबाद। जिस जगह पे वो हुआ है इधर ज्यादातर जो सरकारी मुलाजमीन है या हुकूमत से जुड़े हुए पर कह रहे हैं कि मासूम बच्चे और औरतों की शहादतें भी रिकॉर्ड हुई हैं इसमें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये अगर आपने विजुअल में देखा है तो ये जो पब्लिक के वो घर क्वार्टर्स है और फ्लैट्स वगैरह ज्यादातर इस इलाके में जिस जगह पे ये ट्रेन की बोगी को निशाना बनाया गया तो इस पे वहाँ पे अब मकामी आबादी जो लोग थे वो इनोसेंट लोग जिसको हम कह सकते हैं उनके वो ज्यादा नुकसान हुआ है। बच्चों को भी, ख़वातीन को भी और ज़ख्मी भी, ज़्यादातर जो आम लोग हैं वो ज़ख्मी है जो इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। ये ट्रेन सर्विस को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह है? इसको ये मेरे ख्याल में हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए एक आसान सा टारगेट है, ये सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि
ये कोयटा से ये ट्रेन चलता है बजरिए बरास्ता सक्कर, और फिर यहाँ से लाहौर और पिंडी सक्कर तक ये ट्रेन चलता है। तो इसमें खासकर ईद के दिनों में ईद जो के दिनों लोग में छुट्टी बिल्कुल। पे जा रहे थे अपने प्यारों से मिलने के लिए, ईद अपने प्यारों से मनाने के लिए जा रहे थे, उस वक्त ये टारगेट हुआ है। और इससे पहले भी आपको याद है सर के बोलान में जाफर एक्सप्रेस टारगेट हुआ था, फिर कोयटा एक्सप्रेस पे पिछले साल यहाँ पे स्टेशन पे धमाका हुआ था, उसमें भी आम लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी ये कहा जा रहा है कि हालांकि उसके बाद हुकूमत ने बहुत सख्त इंतजाम किए थे, लेकिन ये कि ये एक सॉफ्ट टारगेट है और हुकूमत के लिए इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि वो कोयटा से सक्कर तक हर किलोमीटर पे या हर 2 किलोमीटर पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे वो खड़े करे, ताकि वो रेलवे लाइन है या उसकी हिफाजत के लिए मुमकिन और इकदाम हो सके। कोई ख़ास सिक्योरिटी इंतजामात इस धमाके के बाद आपको कोयटा में नज़र आए, ज़्यादा सख्त की गई है सिक्योरिटी? जी, कोयटा में इस धमाके के बाद हमेशा की तरह इस बार भी सख्ती इंतजाम सख्त कर दिए गए। खासकर जिस एरिया में धमाका हुआ है वो अभी तक वो एरिया जो है वो उसको सिक्योर किया गया है, उस तहकीकात का अमल जारी है। मुख्तलिफ इदारे जो है वो इस अमल में शरीक है और आम लोगों का उस तरफ आना जाना जो है बंद है, और ट्रांसपोर्ट जो है वो भी उस एरिया में बंद कर दिया गया है। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो तहकीकात करे, क्योंकि जिस जगह पे धमाका हुआ है वहाँ जो लोगों की गाड़ियाँ थी 15 से 20 गाड़ियाँ, और उनको भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज इतवार का दिन था, स्कूल वगैरह ऑफिस की दफातर की छुट्टी थी, जिसके बायस इतने ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। वरना आम दिनों में या वर्किंग डेज में अगर ये धमाका इस टाइम होता सुबह सवेरे तो जानी नुकसान के इम्कानात ज़्यादा थे। कालादम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की है, कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं, कालादम तंजीम की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल हुई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, क्योंकि ये इस तरह के वाक़यात के बाद इंतज़ामिया और इदारे एक्शन में आ जाता है, फिर वो यकीनन लोगों को गिरफ्तार भी करता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नहीं मुलविस होते हैं उनको रिहा करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि फला आदमी जो है इसमें मुलविस है या इसका अलहकार बना है या इसके साथ कोई लिंक है, तो फिर उनको अरेस्ट भी करते हैं और उनके जो उसको शो भी करते हैं कि इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस वाक़े से मुतल्लिक या उनकी जो हाथ है या। गुज़श्ता हफ्ते फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर भी कोयटा आए थे यही सिक्योरिटी और टेररिज्म के हवाले से। क्या बड़े फैसले हुए हैं और उनके क्या नताइज आप देखते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, ये 19 मई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब जो है वो कोयटा आए थे, और उस सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ था, जिसमें वही सिक्योरिटी के उन्होंने तो सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का इज़हार भी किया था, और कहा भी था कि ख़ासकर ईद के मौके पर या जो माइनिंग के शोबा है या दूसरे शोबे या आम जो कौमी शारा है उसको महफूज करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को हिदायत भी जारी की थी। लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होते हैं उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अगर ये कहा जाए कि हम दहशत गर्दी ख़त्म करेंगे या दहशत गर्दों को यहाँ रहने नहीं देंगे, फिर हमने देखा है कि फिर उसके रिएक्शन में इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जिस तरह के आज हुआ है। कोई अफगानिस्तान का नेटवर्क भी इसमें नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान की सहूलतकारी भी जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के माविन है शाहिदीन की जानिब से जो स्टेटमेंट आई, तो उन्होंने तो ये कहा है कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है और वो फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान जो है वो इसमें मुलविस है, और अफगानिस्तान के रास्ते ये लोग आते हैं, क्योंकि अभी ये तहकीक भी हो रही है, ये बात भी सामने है कि हो सकता है ये खुदकश धमाका हो, लेकिन अभी तक इदारों की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये ईद के मौके पर चमन बॉर्डर खोला भी गया था कुछ इंसानी हमदर्दी के तौर पे? बिल्कुल, ये हर साल ईद के मौके पर चमन बॉर्डर को खोल दिया जाता है, खासकर जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं अपने जो रिश्तेदार है उससे ईद मनाने के लिए, या वो जो लोग हैं जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, अपने मुल्क को आबाद करना चाहते हैं, वो अफगान महाजरीन, उनको ये ईद के मौके पर खासकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया जाता है बॉर्डर को,
تاکہ یہ لوگ جا سکے اور عید اپنے پیاروں کو ساتھ بنا لے، اور جس سے یہاں سے جانے والے افغان مہاجرین ہیں وہ بھی زیادہ تر خوش ہے پاکستان کی حکومت کی اس اقدام سے۔ لیکن اس دوران دہشت گرد بھی تو آ جاتے ہیں نا۔ دہشت گرد تو لازمی نہیں ہے کہ جس راستے سے یہاں سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں اسی راستے سے آتا ہے، اس کے پاس اور بھی راستے ہوتا ہے، لازمی بات ہے وہ حکومت کو تو نہیں بتاتے کہ ہم اس راستے سے آئیں گے یا اس راستے سے جائیں گے ان کے، اور پاکستان کی جانب سے جو بہت شکریہ ایوب، بہت شکریہ ایوب۔ مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔